أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده. अहसिब अन्नास, क्या लोग ये समझते हैं, अन युतरकू, कि वो आज़ाद छोड़ दिए जाएंगे, अन यकूलू, ये कि वो ये कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान ले आए, वहुम ला युफ्तनून, हालांकि वो आजमाए नहीं गए हैं, हालांकि वो आजमाए नहीं गए। पूरी आयत का माना करूँगा, कोशिश करता हूँ कि उर्दू के अंदर जोर बलागत आ जाए। इसमें अरबी में जो जोर है वो उर्दू में नहीं आ रहा है। लोगों ने क्या समझ रखा है कि ज़बानी कलमा पढ़ लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हालांकि उनको अभी तक आजमाया नहीं गया है। अहासिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना, लोग ये समझते हैं कि जबान से हम आमन्ना का दावा कर लेंगे तो छोड़ दिए जाएंगे। वहुम ला युफ्तनून, वो आजमाए नहीं गए। वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और यकीनन हमने आजमाया है उन लोगों को जो उनसे पहले थे। पहले मोमिनीन को हमने खूब आजमाया है। वलकद, और यकीनन फतन्ना, हमने आजमाया है अल्लज़ीना, उन लोगों को मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले गुजर गए। फलयअलमन्नल्लाह, तो जरूर बिजरूर यकीनन अल्लाह ताला जान लेगा। लफ्ज़ी माना किया मैंने, असल मकसूदी माना कर रहा हूं। तो यकीनन जान, यकीनन जरूर बिजरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत जाहिर फरमा देगा। वला यालमन्ना वला युज़हिरन्नल्लाह, अल्लाह लाजमी जाहिर फरमाएगा अल्लज़ीना, उन लोगों को सदकू, जिन्होंने सच किया है। वला यालमन्नल कादिबीन,
اور ضرور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ام حاسب الذین، کیا سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں وہ لوگ، یعملون السیئات، جو برے اعمال کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہیں وہ۔ اچھا، برے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ بچ تو نہیں نکلیں گے۔ من کانا، جو کوئی ہے، یرجو، امید رکھتا ہے، یقین کرتا ہے، لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی، فإن أجل اللہ لآت، بے شک اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا مقررہ وقت آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سمیع اور علیم ہے، وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو شخص مجاہدہ کرتا ہے، جو شخص مشقت اٹھاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو بے شک وہ مجاہدہ کرتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو بے شک وہ کوشش کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، لَغَنِيٌّ، غیر محتاج ہے، لَغَنِيٌّ، بے نیاز ہے، لَغَنِيٌّ، غنی ہے، عن العالمین، جان والوں سے، عن العالمین، لوگوں سے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ لوگوں سے غنی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن، ہم یقیناً مٹا دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ان کے گناہ، ولنجزینہم، اور ہم ضرور بضرور ان کو جزا دیں گے، احسن، بہت اچھی جزا، الذی کانوا یعملون، وہ جو اچھے اعمال کرتے رہے ان کے اچھے عمل کی جزا ان کو ضرور دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو، ہم نے حکم دیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین سے حسن معاملہ رکھنا، والدین سے حسن سلوک کرنا، والدین سے حسن معاشرت کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں ماں باپ کوشش کریں آپ کو، لِتُشْرِكَ بِي، کہ وہ آپ کو شرک کے اندر مبتلا کر دیں، مَا لَيْسَ لَكَ، وہ شرک جس کا نہیں ہے آپ کے لیے بھی اس شرک کے بارے میں علم، کوئی معلومات، کوئی علم، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میرے پاس تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں تم کو بتاؤں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ، تو ہم ان کو داخل کریں گے، فِي الصَّالِحِينَ، صالح لوگوں میں، نیک لوگوں میں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر، فَإِذَا أُوذِيَ، پھر جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، فِي اللَّهِ، اللہ کی راہ میں، جعلا، بنا دیتے ہیں، فتنة الناس، لوگوں کی آزمائش کو، کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر آ جائے ان کے پاس آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد، لَيَقُولُنَّ، تو یقیناً وہ کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمٍ، کیا اللہ نہیں جانتا ہے، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور یقیناً ظاہر کر دے گا اللہ تعالیٰ، الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا کافر لوگوں نے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں سے،
इत्तबिउ सबीलना, हमारी राह की इत्तिबा करो, वलनहमिल खतायाकुम, हम उठाएंगे तुम्हारी खताओं का बोझ, हम उठाएंगे तुम्हारी खताओं को, वमा हुम बिहामिलीना, हालांकि वो नहीं उठाने वाले, मिन खतायाहुम, उनकी खताओं को, मिन शैइन, जरा भी, कख भी, कुछ भी, इन्नहुम लकादिबून, बेशक वो कूड़े हैं, इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो झूठे हैं, वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम, और यकीनन वो उठाएंगे अपने बोझों को, व अस्क़ालम मा अस्क़ालिहिम, और उनके बोझों को भी अपने बोझों के साथ उठाएंगे, वला युसअलुन्ना, और यकीनन पूछा जाएगा यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन उनसे, अम्मा कानू यफ्तरून, जो कुछ वो तराशते रहते थे, जो कुछ वो घड़ते रहते थे, जो वो इफ्तिरा करते रहते थे, जो वो झूठ तराशा करते थे, उनकी बाकायदा तफ्तीश की जाएगी उनसे। सूरत का नाम है सूरतुल अनकबूत। अनकबूत का माना है मकड़ी, बबुआ, डावल, और क्या कहते हैं उसको, और अंग्रेजी में भी कुछ कहते होंगे, स्पाइडर, स्पाइडर, अच्छा अच्छा अच्छा, स्पाइडरमैन भी यही होता है, अच्छा अच्छा, हाँ। तो अब अनकबूत अरबी में, स्पाइडर इंग्लिश में, और मकड़ी उर्दू में, बबुआ गोजरी शरीफ में, इनको में भी है, इनको शरीफ में भी इसको बबुआ कहते हैं। सूरत का नाम अनकबूत है। अल्लाह अकबर। इस सूरत के निसफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अनकबूत की एक मिसाल बयान फरमाई है। उस मिसाल को वहीं समझेंगे, वहीं लुत्फ आएगा। आयत नंबर है 41, मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, अल्लाह को छोड़ के जिन दरों पे तुम गए हो वो मकड़ी के जाले से भी कमजोर हैं। वहां जाएंगे फिर, इसलिए सूरत का नाम सूरत अनकबूत है। अल्लाह अकबर। एक जुमला कहता हूं, अल्लाह के मां सिवा दुनिया के तमाम सहारे मकड़ी के जाले से ज्यादा कमजोर है, मकड़ी के जाले से ज्यादा कमजोर है। सूरत मक्की है, यह बात ज़हन में रखनी है। सूरत से एक इस्तदलाल करने लगा हूं। सूरत मक्की है और सूरत का मरकजी मजमून है दीन के रास्ते में, दीन को अपनाने में, दीन को इख्तियार करने में मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें आएंगी। मरकजी मजमून ये है। परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें, आफतें, मुश्किलात दीन के मामले में क्यों आएंगी, उसका जवाब भी है सूरत में। और जिस वजह से आएंगी, अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह की रिसालत, सदाकत किताब, सदाकत क़यामत, अकीदा आखरत, उसका भी साथ साथ बयान है। और 7-6 हवाले अल्लाह ने पेश फरमाए हैं कि मुश्किलात आएंगी। 6 हवाले भी अल्लाह ने पेश फरमाए। सूरत के अंदर चंद बुनियादी चीजें, अलिफ लाम मीम, ये राज अल्लाह ही को मालूम है कि अलिफ लाम मीम में क्या राज है। अल्लाह वालमु बिमुरादिही। मुफस्सिरीन ने इन हुरूफ के मुताल्लिक जो अपनी आरा पेश की, उनमें एक बड़ी मजे की राय यह है कि ये जितना कुछ सूरत अनकबूत का मजमून है ना, वो सब अलिफ लाम मीम के कोड वर्ड में मौजूद है। सुभान अल्लाह। और बड़े बड़े राज हैं। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोग क्या समझते हैं कि वो सिर्फ जबानी दावा ईमान करके कामयाब हो जाएंगे, उनको आजमाया नहीं गया है। हालांकि वलकद फतन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, पहले जितने भी लोग थे उनको ईमान में आजमाया गया है। आजमाइश आएगी। आजमाइश के अपने अपने दर्जे हैं। मेरा ईमान इतना ही है तो बुखार में आजमाया जाऊंगा। बड़े लेवल का ईमान है
تو اس سے بڑی مصیبت آ جائے گی، بڑی آزمائش آ جائے گی، اور بڑی آزمائش ہے تو اور بڑا ایمان کا درجہ ہے تو اور بڑی آزمائش ہے۔ اولیاء، صدیقین، شہداء، اتقیاء، صلحاء، ان سب سے زیادہ صحابہ کو آزمایا گیا ہے، بڑی آزمائشیں گزری ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے بھی زیادہ، صحابہ اور اہل بیت، ان سے بھی زیادہ انبیاء کو آزمایا گیا ہے، اور سارے نبیوں سے بڑھ کر رسول اللہ پہ آزمائشیں آئی ہیں، آئیں گی مشکلات۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آزمائش کی علت، ہم اس لیے آزمائش کریں گے تاکہ ہم سچوں اور جھوٹوں کو پہچان لیں۔ وہ اللہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے۔ یہاں پہ یعلمن کا معنی یظہرن ہے، ہم ظاہر کر دیں۔ اکابر مفسرین نے جو معنی کیا اس کا خلاصہ یہی ہے، ہم ظاہر کر دیں گے۔ اب چونکہ ردم میں بات اردو میں معنی کریں گے، آزمائیں گے اس لیے تاکہ پتہ تو چلے نا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ دودھ کے مجنو اور خون کے مجنو کو الگ الگ کرنا ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اس کو ذرا ظاہر تو کرنا ہے ہم نے۔ اور پھر ایک اور بات فرما دی، جھوٹے یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلیں گے، جھوٹے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلیں گے۔ ہم برائی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور دیکھو جی پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، ہمارے حالات خراب کسی آزمائش کی وجہ سے بھی ہیں، ہم دور آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ جی کافر اتنے مزے کرتے ہیں، جی یہ وہ ہے فلاں ہے، سب کچھ ہے، ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ساء ما یحکمون۔ بہت غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ سنیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات پہ ایمان رکھتا ہے، تو اللہ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ملاقات کا وقت کیسے آ رہا ہے؟ کئی لوگوں کو تو دنیا کی زندگی میں یہ ملاقاتیں نصیب ہیں، جیسے بھی ان کی صورت ہے۔ کئی لوگوں کو ایمان پر اطمینان اتنا ہے کہ گویا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لطف و کرم کو محسوس کر رہے ہیں۔ کئی نزا کے عالم میں کہتے ہیں آ گیا ہے میرا دوست، رستہ دے دو۔ ان اجل اللہ لآت۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ موت ان کا استقبال کرتی ہے اور وہ موت کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اپنے ریفرنس میں، ہمارے اپنے جاننے والوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے موت کے وقت میں کہا ہے رستہ دو، آ گئی موت، اور پھر لب ہلائے اور گئے رخصت ہو۔ کیا بات ہے، جانے کا کتنا پیارا منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آزمائشیں کیسے ہوں گی؟ من جاہد فإنما یجاہد لنفسی۔ مجاہدہ کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ جہاد کی تمام صورتیں مراد ہیں، جہاد بالقتال سے لے کر جہاد باللسان، جہاد بالقلم، تمام جہاد مراد ہیں۔ مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، مجاہدہ کا فائدہ لنفسی، خود اس کو ہے، اللہ کو تو فائدے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اللہ تعالیٰ جان والوں سے غنی ہے۔ غنی کا معنی کرتے ہوئے دنیا کی تمام زبانوں کا دامن تنگ ہے۔ جو غنی کا معنی ہے نا، کسی نے معنی کیا نرادہار ہے، کسی نے کہا سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی نے معنی کیا بے نیاز کا، کسی نے معنی کیا بے پرواہ کا۔ اللہ رب العزت کو یہ، اللہ رب العزت اگر کوئی فیصلہ کر لیں تو وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، اور ساری کائنات مل کے اللہ کو ایک ککھ کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی اللہ کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ وہ غنی ہے۔ تو پھر غنی کا معنی غنی ہی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غنی ہے، غنی ذات میرے اللہ کی ہے۔ عن العالمین، لوگوں سے۔ عالمین کے بہت سارے معنی ہیں، یہاں عالمین کا معنی لوگ ہیں، الناس۔ عالمین کا معنی جہان بھی ہے، عالم کائنات بھی ہے، اور عالمین کا معنی یہاں پر لوگ ہیں، الناس۔ عن العالمین عن الناس، اللہ لوگوں سے غنی ہے۔
पूरी कायनात से गनी है अल्लाह ताला। वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग नेक अमाल करते हैं, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, हम उनके गुनाहों को मिटा देते हैं और हम उनको बहुत अच्छा अजर देते हैं। गुनाहों को कैसे मिटा देते हैं? गुनाहों को माफ कर देते हैं, गुनाहों को उनकी तबीयत में नफरत पैदा कर देते हैं, फिर वो गुनाह करते ही नहीं। गुनाहों के असबाब ही को उनसे दूर कर देते हैं। अगर गुनाह की तरफ कदम उठते भी हैं तो हम जबरन रोक लेते हैं, पीछे कर देते हैं, मौका ही नहीं देते। अल्लाह हमें गुनाहों का मौका ही न देना, हम नहीं बच सकते। तो अब ये लनुकफ्फिरन्ना में सारे माने आते हैं, माफ करने वाला माना भी आता है, रोक देने वाला माना भी आता है, नफरत वाला माना भी आता है। हम उनके अमाल को बदल देते हैं। और एक माना यह भी है कि जब नेक अमाल की तरफ इंसान ईमान और अमाल की तरफ आ जाता है तो उसके जितने पिछले गुनाह होते हैं अल्लाह उन गुनाहों को माफ करके इतनी नेकियां उनके सिले में रख देते हैं। लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम, तौबा सच्ची हो तब, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तौबा ना हो, जो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है। हाँ, एक बात याद रखना, दीन के मामले में आजमाइश एक आजमाइश, पहली आजमाइश लिनफ्सिही फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, नफ्स पे बात आएगी, अपने आप पे जबर करना होगा, हराम से रुकना है, हलाल को करना है, दीन को तरजीह देनी है, बेदीनी को छोड़ना है, लोगों की बातें सुननी है, अपने आप को इसके ऊपर कायम रखना है। पहली बात, अपनी जात की आजमाइश ज्यादा होती है। इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, सूरत का मरकजी मजमून है, दीन के रास्ते में मुश्किलात आएंगी। पहली मुश्किल अपनी जात पे, जात से जंग लड़ गए हो ना, आगे निकल गए हो तो एक और जगह भी आ सकती है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, वालिदैन रुकावट बन जाएंगे, हम खफा हो जाएंगे, यह बड़ा मुश्किल मकाम है। याद रख, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कायम रखना, लेकिन दीन को न छोड़ना। अगर वो दोनों मिलके भी कोशिश करें कि आप शिर्क करो अल्लाह के साथ, जिसकी कोई दलील ही नहीं, जिसका कोई इल्म ही नहीं है, तो उनकी शिर्क पर मजबूर करने वाली बात को तो ना मानना, कुफर पे मजबूर करने वाली बात को तो ना मानना, फिस्क पे मजबूर करने वाली बात को तो ना मानना, लेकिन सलूक उनसे अच्छा ही रखना। दर्स में मुस्तकिल साथी जो बैठते हैं ना, मैं कभी कभी उनसे कहता हूं कि मुखातब रसूलुल्लाह को किया है, खताब रसूलुल्लाह को किया है, सुनाया उम्मत को है, उसकी दलील दे दूं, आज दलील दे दूं। यह दलील है, व इन जाहदाका, अगर वो दोनों मिल के भी आपके लिए ये कोशिश करें, ले तुशरिका बी मा लैसा लका बी इल्मुन, कि आप अल्लाह के मेरे साथ शरीक ठहराएं उसको जिसकी कोई दलील नहीं, फला तुतिउमा, तो उन दोनों की इताअत न करना। जब ये आयत नाज़िल हो रही थी रसूलुल्लाह के वालिदैन दुनिया में मौजूद नहीं थे। बात समझ में आई हो? बात समझ में आई है कि जब ये आयत नाज़िल हो रही थी रसूलुल्लाह के वालिदैन दुनिया में मौजूद नहीं थे। मुखातब फिर भी रसूलुल्लाह को किया है कि अगर आपके माँ बाप मिलकर कोशिश करें, और रसूलुल्लाह के माँ बाप की तो कोशिश फिर हो ही नहीं सकती थी क्योंकि वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मालूम हुआ मुखातब अल्लाह ने अपने नबी को किया है, सुनाया साहिब कुरान को है। जितने लोग भी कुरान की तिलावत करते हैं उन सब को सुनाया है, खताब रसूलुल्लाह को है। ये दलील याद रखना कि खताब रसूलुल्लाह को है और मुराद उम्मत है। यहां पर भी खताब रसूलुल्लाह को है, मुराद उम्मत है, कतई और यकीनी तौर पर, क्योंकि रसूलुल्लाह के तो वालिदैन ही फौत हो चुके थे जी। वह इन जाहदाका, वो दोनों मिलके भी कोशिश करें, तस्निया का सीगा है कि आप मेरे साथ शिरक करें, मा लैसा लका बी इल्मुन, जिसकी कोई दलील ही नहीं, इल्म ही नहीं, शिरक की कोई दलील नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी कुदरत में, अपने कामों में, अपने अफ़ालों में, अपनी हाकमियत में, अपनी सल्तनत में, अपनी रबूबियत में, अपने इल्म में, तमाम अपनी कुदरतों में, अपने हाकिम होने में, अपने खालिक व मालिक होने में अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, आजमाइशें तो आएंगी, लेकिन याद रखना कि जो लोग नेक अमाल करते हैं, ईमान लाते हैं, नेक अमाल करते हैं, हम उनको सालिहीन में शामिल करेंगे। हम आजमाते इसलिए भी हैं ताकि खरे खोटे अलग हो जाएं। खोटों की एक मिसाल दी, खोटों की,
खरे मोमन अलग हो जाएं, खोटे खोटे अलग हो जाएं। कुछ खोटे ऐसे भी हैं जो जबान से कहते हैं व मिनन नास मैं यकूलू, लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान ले आए। फ़ैज़ा ऊज़िया फिल्लाह, जब उनको तकलीफ पहुंचती है अल्लाह के रास्ते में, जाला फितनतन नास का अज़ाबिल्लाह, तो फिर वो आजमाइश को अल्लाह का अजाब समझते हैं और कहते हैं जी अजाब आ गया। उहद में मुसलमान शहीद हो गए, मुनाफिकों ने बातें शुरू कर दी, ये अल्लाह के इतने ही प्यारे और महबूब लोग हैं तो इनके 70 लोग क्यों मारे गए, और जी अगर ये सच्चे थे तो ये कत्ल क्यों हुए उहद में। और तरह तरह की बातें करते हैं और तरह। ओहो, ये जितनियां नमाजा पढ़ दे इससे उल्टी पेज उल्टियां हम माशरे में नहीं कहते। ये दीनदार भी हैं फिर भी इनके नुकसान हो जाते हैं। जी अल्लाह की राह में कोई तकलीफ आ पहुंची है तो उसको उन्होंने आजाब समझ रखा है, सजा समझ रखी है लोगों की। और वला इन जा नस्रुम मिन रब्बिक, और जब अल्लाह की तरफ से कोई मदद आ जाती है ला यकूलुन्ना इन्ना कुन्ना मआकुम, तो फिर कहते हैं जी हम तो तुम्हारे साथ थे, हम तो तुम्हारे साथ थे, हमने तो आपको सपोर्ट किया है। यह मुनाफिकों की अलामत है। और पक्के मोमिन जब जरूरत पड़ी है दीन को तो सबसे आगे हैं, और तकलीफ पहुंची है तो रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, हम अल्लाह की रजा पे राजी हैं। पक्का मोमिन यह होता है। वाला यालमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू अवलैसल्लाहु बिअलम बिमा फिस सुदूर, अल्लाह ताला तो सब जानता है जो कुछ भी लोगों के दिलों में है। यहां पर भी अल आलमीन का माना अन्नास है, फी सुदूरिल आलमीन फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों के अंदर जो कुछ है ना हम उसे सब जानते हैं। इस्तिफहाम इकरारी है, क्या अल्लाह नहीं जानता? अल्लाह यकीनन जानता है। वला यालमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वला यालमन्नल मुनाफिकीन, अल्लाह मोमिनों को और अल्लाह मुनाफिकीन को अलग अलग करके छोड़ेगा। यहां पर भी यालमन्ना का मतलब यहां पर भी वही युज़हिरन्ना है। वकाल अल्लज़ीना कफरू लिल्लज़ीना आमनू, और काफर लोगों ने ईमान वालों से कहा इत्तबिउ सबीलना, हमारे पीछे पीछे आओ, वल नहमिल खतायाकुम, हम उठाएंगे तुम्हारी खताओं को, हम उठाएंगे तुम्हारी गलतियों को। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ आ जाओ, क़यामत आई तो देखा जाएगा, हशर आई तो देखा जाएगा, अल्लाह को जवाब देने के लिए हम हैं ना, हमारे साथ आ जाओ। कुछ ऐसे भी थे जो कस्में उठा उठा के लोगों को कहते थे हमारे साथ आओ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारे बोझ उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शैइन, बोझ पूरे पूरे उठाना तो दूर की बात, शे भी नहीं उठा सकते, शे कख, जरा भी किसी चीज को नहीं उठा सकते। और मेरे दादा उस्ताद हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे शैइन नकरा तख्तन नफी, पीछे लफ्ज़ मा दाखिल है, यानी इसका बिल्कुल कम तर दर्जा तहकीर के लिए यह है, कख भी नहीं उठा सकेंगे, वो झूठ बोलते हैं। इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाहु अकबर, इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो झूठे, बेशक वो झूठे, झूठ बोलते हैं। लेकिन अगली आयत को जरा समझना है गौर से, वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालम मा अस्क़ालिहिम, वो अपने बोझों के साथ उनके बोझ भी उठाएंगे। ऊपर अल्लाह ने खुद फरमाया बोझ नहीं उठाएंगे, और अगली आयत में फरमाया है कि वो बोझों को उठाएंगे। क्या मतलब? काफिर जो कहते हैं कि तुम्हारे गुनाहों के बोझ हम उठाएंगे, ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये जो कहने वाले काफिर है ना, ये अपना बोझ भी उठाएंगे और उन दूसरे लोगों को गुमराह करने का बोझ भी उठाएंगे, ये माना है। ठीक है, ये माना है। अब इस माने को ज़हन के अंदर रखना है। वाला युसअलुन्ना यौमल क़ियामा, और यकीनन तफ्तीश की जाएगी उनसे, उनसे पूछा जाएगा, यानी गुस्से से पूछा जाएगा, ये नहीं कि मालूमात के लिए पूछा जाएगा। ये ऐसे ही है, मैं पूछ के अंसातों को समझे, ये इस लहजे में कहा गया है, ये उसलूब है। पूछ लिया जाएगा उनसे, तफ्तीश कर ली जाएगी, जवाबदेह होंगे वो। हम्मा कानू यफ्तरून, जो जितनी भी घड़ंतू बातें वो घड़ते रहे उन सब के बारे में पूछा जाएगा। हवाला शुरू हो रहा है, दीन के मामले में आजमाइशें आएंगी,
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ سمجھ گئے ہو؟ یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے، دین کے معاملے میں آزمائشیں آئیں گی۔